नमस्कार, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড স্পন্সর্ড বাই সিটিএ এভিয়েশন অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট। জামশেদপুরে মায়ের মমতাকে কলুষিত করার একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে মানগু থানা এলাকার কুমরুম বস্তির একটি পুকুরে একটি নবজাতক শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে জানায় যে একটি নবজাতকের মৃতদেহ পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুলিশ এখানে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নবজাতকের মৃতদেহটি নিয়ে বিষয়টির তদন্ত শুরু করে। একই সঙ্গে স্থানীয় লোকজন বলেছে যে অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে এই ধরনের ঘটনাটি ঘটেছে। पुलिस घटनाटी तदंत शुरू करेছে। सूचना मिला कि एक तालाब में लड़का है, जन्मा हुआ बच्चा है, जिसको कि कोई लवारिस हालत में फेंक दिया है, जो कि डूबकर मर गया है। सूचना पर हम लोग आए, आने के बाद देखे कि इसका कोई वारिस वगैरह कुछ नहीं था। सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, स्थानीय लोग थे। सबसे विचार विमर्श करने के बाद लड़का को हम लोग इसी तालाब के बगल में दफना दिए। किसी का बच्चा होगा, जायज तो नहीं हो सकता है। ये NH33 मावा भगने के पीछे कुमरुम बस्ती का एक तालाब है, यहीं पे कई घटना है। मानवता को शर्मसार करने वाला एक घटना है। कोई महिला रात में आई है और बच्चा को यहाँ तालाब में पानी में फेंक के चली गई हैं। सुबह इसका सूचना मिलता है हम लोग को, तो हम लोग थाना को सूचना देते हैं और सारे लोग हम लोग आते हैं। वरना गुप्ता ITCL के सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और उसको राय विचार करके हम लोग उस बच्चा को यहीं पे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग दफना दिए हैं। माँ को नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा के लिए तरस रहा है और किसी को बच्चा मतलब मिल गया तो उसको तालाब में फेंक रहा है। बच्चा को इस तरीके से तालाब में नहीं फेंकना चाहिए था। कितना माँ के बच्चा नहीं है, बच्चा के लिए दर दर भटक रहा है, उसको ही दे देता, कम से कम पाल पोस के बड़ा करता। জামশেদপুর গোবিন্দপুর থানা অন্তর্গত স্ট্রিপ স্টিল হুইলস কোম্পানির গেটে লকডাউনের জন্য শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হয়নি। জানানো হচ্ছে যে এখানে 1100 জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। জানানো হচ্ছে এই শ্রমিকদের লকডাউন মেয়াদে বেতন দেওয়া হয়নি। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী শ্রমিকদের বক্তব্য, তারা কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে তারা কোনো ন্যায় বিচার পাননি। এরপরে কর্মীরা অসহায় হয়ে কোম্পানির গেটে বসে পড়ে। শ্রমিকদের তীব্র আন্দোলন দেখে ঘটনাস্থলে বিডিও এবং স্থানীয় থানার পুলিশ বাহিনীও পৌঁছায়। তারা শ্রমিক ও সংস্থা প্রবন্ধনের সাথে আলোচনা করেন। এরপরে প্রবন্ধন বেতন পরিশোধের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য এক সপ্তাহের সময় চেয়েছে। श्री विनीत अग्रवाल के घर पे हम लोगों ने सैलरी की मांग को लेके घेराव किया था। कौन सा सैलरी के लिए? आपका लॉकडाउन की अवधि में जो गवर्नमेंट का आदेशानुसार कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सभी कर्मचारी को उनका सैलरी दिया जाएगा। हाँ। उसके एवज में ये जो स्टील मिल जो गोविंदपुर स्थित प्लांट है, हाँ। उन्होंने जितने भी ठेका कर्मी है मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का लॉकडाउन की अवधि में किसी को भी पेमेंट का भुगतान नहीं किया। हाँ। आज भी हम लोगों ने प्लांट को घेराव किया सैलरी को लेके। 31 तारीख को भी किया था। उन लोगों ने 3 से 4 दिन का टाइम मांगा था। 3 से 4 दिन टाइम पार हो जाने के बावजूद भी ना तो प्लांट के प्रमुख विनीत अग्रवाल और ना ही उनके HR जिनको हम लोगों ने रिसीविंग दिया था या तो उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। प्रतिक्रिया का कोई रिप्लाई ना पाते हुए हम लोगों ने आज 3 तारीख तो हम लोगों ने स्टील मिल्स का गेट का जाम किया और उन्होंने ये 7 दिन का वीडियो साहब के नेतृत्व में, देखरेख में और यहाँ के थाना प्रभारी के नेतृत्व में उन्होंने 7 दिन का अवधि पत्र दिया है। বিশ্বব্যাপী সংকট করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে গত মার্চ মাস থেকে সারা দেশে লকডাউন জারি ছিল। দেশ থেকে করোনা সংক্রমণের আতঙ্ক শেষ হয়নি। তা সত্ত্বেও অর্থনীতিকে মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রায় সমস্ত সেক্টর থেকে লকডাউনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কাপড় এবং সেলুন, স্পা এবং পার্লার সেক্টরকে ঝাড়খণ্ড সরকার থেকে ছাড় দেওয়া হয়নি। এই সমস্যা সম্পর্কে জেলা সেলুন, স্পা এবং পার্লার সঞ্চালক আর জেলা সদরে পৌঁছে এই বিষয়ে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। জমা দেওয়া স্মারকলিপির মাধ্যমে তারা জানান যে জেলায় প্রায় 60 থেকে 65 হাজার সেলুন, স্পা এবং পার্লার কর্মী রয়েছেন, যারা লকডাউনের কারণে অনাহারের পরিস্থিতিতে পৌঁছেছেন। তারা বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার এই খাতের লোকেদের রাজ্যে ত্রাণ দেয়নি। তারা বলেন যে সরকারের উচিত তাদের শর্ত সাপেক্ষে সেলুন এবং স্পা পার্লার খোলার অনুমতি দেওয়া, যাতে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। लोग DC सर से मिलने के लिए आए थे। एक्चुअली हम लोग का लेडीज सैलून है और हम लोग बहुत सारे ऐसे सैलून वाले हैं जो कि इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते में परेशान है और हम लोग सैलून नहीं खोल पा रहे हैं, जिससे कि हमारे स्टाफ, हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, कम से कम अगर सब सैलूनों को मिलाया जाए तो 60 से 65 हज़ार ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी घर बैठे हुए हैं।
और उन लोग का खाना पीना चलने में दिक्कत हो रहा है। तो और अगर जैसे कि अब सुने हैं कि पीएम साहब ने कहा है कि सब जगह सैलून वगैरह को खोलने की परमिशन दी गई है, वैसे अगर हमें यहाँ भी परमिशन दी जाए तो हम भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हम लोग उनके घर पे उनको जो हेल्प कर रहे थे वो हम लोग कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हम लोग भी सैलून पे गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, सैनिटाइज करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि किसी भी क्लाइंट को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और सैलून ऐसी चीज़ है कि सबको इस चीज़ की नीड है। अगर बात की जाए कोई भी, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, सबको सैलून की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं लोग करा रहे हैं इस चीज़ को, जिससे कि ये काम तो वैसे भी चल रहा है, लेकिन अगर सैलून में होगा तो उसको जितनी सावधानी से और जितना हम लोग सैनिटाइज करके करेंगे वो आप घर पे नहीं कर सकते हो। इसलिए हम डीसी साहब से आग्रह करते हैं कि हमारे सैलून को खोलने की परमिशन दी। লকডাউনের সময় মহিলা কংগ্রেস নেত্রী এবং মহিলা কংগ্রেসের কার্যকর্তাদের জেলা মহিলা কংগ্রেসের জেলা অধ্যক্ষ দ্বারা প্রশস্তি পত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আজ প্রায় 100 জন মহিলা কার্যকর্তাদের সম্মানিত করা হয়। महिला जिला कमेटी के तहत हमारे जो भी महिलाएं इस कड़कती धूप में काम की हैं और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाना वितरण की है, सैनिटाइज़र वितरण की है और बिना अपने जान की परवाह किए हुए दिन रात लग करके सेवा भाव से खटी हुई है। इसलिए हम महिला कांग्रेस के प्रति स्नेह प्रकट करती हूँ और इन्हें बधाई पत्र देकर इन्हें प्रोत्साहन करने के काम करती हूँ कि जिस तरह से हमारे सैनिक सरहद पर लड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हमारी ये बहनें कमर कस के दिन रात करके लड़ी हुई हैं। इसलिए হোমগার্ডরা পূর্ব সিংভূম জেলা জেলা প্রশাসককে একটি চিঠি লিখে জেলার আইন শৃঙ্খলায় তাদের ভূমিকা বাড়াতে চেয়েছেন। জেলা প্রশাসককে লিখিত চিঠির ভিত্তিতে ঝাড়খণ্ড হোমগার্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন প্রাক্তন জেলা সম্পাদক কমল শর্মা বলেন যে ঝাড়খণ্ডের সমস্ত জেলা প্রশাসককে ঝাড়খণ্ড সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক 2014 সালে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল, যেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্তব্যরত হোমগার্ড কর্মীদের মোতায়েন করার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন পূর্ব নির্ধারিত কোটাও হ্রাস করেছে, যার কারণে হোমগার্ডদের সামনে অর্থনৈতিক সংকটের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। জেলার জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দেওয়া চিঠির ভিত্তিতে তারা সরকারের নির্দেশ মেনে চলার দাবি জানিয়েছিলেন, যাতে বলা হয়েছে যে জেলার হোমগার্ডদের অধিক সংখ্যায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ডিউটিতে বহাল করা উচিত। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें विधि व्यवस्था ड्यूटी का बढ़ाने का मांग किया गया है। सरकार द्वारा 2017 में गृह विभाग के द्वारा सभी उपायुक्त को झारखंड को एक पत्र प्रेषित किया गया था। उस पत्र के आलोक में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के द्वारा काफ़ी पत्राचार किया गया, लेकिन आज तक इस जिला में और झारखंड में जहाँ जहाँ गृह रक्षकों की कमी है, विधि व्यवस्था ड्यूटी का कोटा जो कोटा पूर्व में निर्धारित था, उस कोटे को भी घटा के यहाँ इस जिला में 200 गृह रक्षक की प्रतिनियुक्त किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि विधि इस परिस्थिति में होमगार्ड को और पूर्व मुख्य सचिव के द्वारा भी आदेश निर्गत किया कि होमगार्ड को अधिक से अधिक ड्यूटी मिले, लेकिन उस आदेश का भी पालन नहीं हो रहा। हमारा यही मांग है। টাটা মোটরস এবং কনভয় চালকদের মধ্যে আবারও বিরোধ শুরু হয়েছে, যেখানে সম্প্রতি লকডাউন মেয়াদ চলাকালীন বেতন না দেওয়ার দাবির প্রতিবাদ জানাতে টাটা মোটরসের কোম্পানির গেটে পৌঁছায় তারা। কনভয় চালকরা বলেন যে পুলিশ প্রশাসনের ভয় দেখে কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট তাদের প্রতিবাদ নিবন্ধন করতে বাধা দেয়। এদিকে আজ আবার কনভয় চালক জামশেদপুর জেলার সদরে পৌঁছান। তারা জেলা প্রশাসকের কাছে লকডাউন মেয়াদে বেতন দেওয়ানোর জন্য দাবি করেন। কনভয় চালকরা জানিয়েছেন যে প্রায় 900 জন কনভয় চালককে লকডাউনের সময় মাত্র 5000 টাকা দিয়েছে কোম্পানি प्रबंधन। पेमेंट करने का जो सरकारी आदेश है उसको लेके हम लोगों ने 2 महीना तक प्रयास किया कि सरकारी स्तर से समाधान हो। ये डीएलसी स्तर से समाधान का रास्ता नहीं निकलना, हम लोग 1 नंबर गेट पर गए कि प्रबंधन वार्ता करे। वहाँ वार्ता करने के जगह भी प्रशासन की ओर से टाटा मोटर ने टाटा तेलको थाना को आगे करके हम लोग का दमन कराने का प्रयास किया, लेकिन जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एसडीओ के माध्यम से हमारा मेमोरेंडम को लिया और हम लोग को बताया गया कि डीसी महोदय के पास आपका जाना है, निश्चित रूप से आश्वासन होगा। आज हम लोग आए डीसी महोदय के पास मात्र इसी बात को रखने कि पूरा हिंदुस्तान के लोग लॉकडाउन में आम लोगों की सेवा में उतरे हैं। वहीं टाटा मोटर उन कनवाई चालकों से लड़ रहा है, जिससे बल पर टाटा मोटर आज हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के बुलंदी पर पहुँचा है। यार इस बात के लिए हम लोग आए यहाँ पर कि क्या कनवाई चालकों को कितना शोषण करेगा टाटा मोटर, उस पर कार्रवाई कब होगी और कनवाई चालकों को जो लॉकडाउन में 2 महीने का वेतन देना अनिवार्य है।
ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের সুন্দরনগর থানা এলাকার তুরামডি গ্রামবাসীদের একটি নতুন উপহার দিয়েছে করোনা। তুরামডিতে ইউসিআইএল এর পক্ষ থেকে এই অঞ্চলে ওপেন কাস্ট মাইনিং চলছিল, যা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে কাজ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে গ্রামবাসীরা বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়লে বহু লোকের কর্মসংস্থানও নষ্ট হয়ে যায়। এরপরে 12টি গ্রামে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যেখানে বাস্তুচ্যুতরা পর্যায়ক্রমে আন্দোলন শুরু করে। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের ইউসিআইএল প্রকল্পটিকে আবারও অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়াও বান্ধবরা ওপেন কাস্ট মাইনিং প্রকল্পে বেশ কিছু গ্রামের 48 জন যুবককে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানও সরবরাহ করা হয়। একই সাথে ওই গ্রামের গ্রাম প্রধান এবং ইউসিআইএল ম্যানেজমেন্টের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শীঘ্রই বাস্তুচ্যুত 350 জন যুবককে এই প্রকল্পে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। बांधवगढ़ ओपन कास्ट माइंस का था। विगत 6 महीना से ये मामला विचाराधीन था, लेकिन आज बहुत दिन के बाद खुशी की बात है कि बांधवगढ़ ओपन कास्ट माइंस काम शुरू हो गया और ग्रामीण में खुशी की लहर है कि काम रोजगार मिलेगा, जिसमें बहुत सा परिवार चलेगा। इस कोविड-19 में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है सरकार के तरफ से और यूसीएल के तरफ से भी ये रोजगार मिल रहा है। ये धन्यवाद के पत्र है। जो भी पेंडिंग केस है यूसीएल में, जो भी विस्थापितों का पेंडिंग केस है, ये 1 सप्ताह के अंदर में यूसीएल सारे लोगों का डाटा सूची तैयार कर ये सार्वजनिक करेगा। ये लोगों को विस्थापित में नौकरी ज्वाइन करने के लिए वो लेटर इशू करेगा, जारी करेगा। गाँव के सभी पदाधिकारी रांची में विधायक के द्वारा हेमंत सोरेन से हम लोग मिलकर ये बात को हमने विस्थापित को मांग को रखा और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ये माइंस खुलेगा और जो विस्थापितों के समस्या को समाधान के लिए हम प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी भी कहे थे और हम लोग ने ये देखा बकाई ये बहुत जल्दी हो गया और उनको भी हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। सरायकेला पूर्व सिंहभूम सीमांते अवस्थित चेकपोस्टे राजनगर पुलिस द्वारा 18টি বাহনকে নো এন্ট্রি অঞ্চল পেরিয়ে আসার কারণে ওই সমস্ত বাহনের থেকে আরটিও দ্বারা জরিমানা করা হয়। সরাইকেলা জেলা খনন পদাধিকারী, আরটিও, রাজনগর বিডিও, সিও ইত্যাদি আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জানানো হচ্ছে যে মুরুমডি পুলটি দুরবস্থার কারণে সরাইকেলা ডিসি একটি নির্দেশ জারি করেছিলেন, যার অধীনে ভারী যানবাহনকে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে চোরাইভাবে ভারী যানবাহনের চলাচল অব্যাহত ছিল, যেগুলি স্পঞ্জ আয়রন বোঝাই করা ছিল এবং সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং সেগুলি মানদণ্ড অনুযায়ী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে সরাইকেলা জেলা প্রশাসকের নির্দেশ না মানার কারণে সমস্ত যানবাহনের জরিমানা কাটা হয়। ये उसमें ये हेवी व्हीकल को नहीं आना है सरायकेला से राजनगर वाली रूट। इसके लिए लॉन्ग रूट है, ये सीधे ये टाटा होते हुए आएगी। ये बड़बिल से चली थी, इसको हाथा आना था, तो ये शॉर्ट ड्राइवर की वजह से ये शॉर्ट रास्ता पकड़ लिया। उसके बाद ये हम लोग का चेकिंग पॉइंट में वो थोड़ा सा रोक दिया गया। फिर उसका सभी ये संबंधित अफसर लोग आए, डीटीओ, आरटीओ और माइनिंग वाले सब अपना अपना चेकिंग किए और वेट भी करा दिए। सब ओके पाया गया और सिर्फ इसके लिए ये रूट चेंज किया गया, इसके लिए वो फाइन गई है। जो प्रतिबंधित रास्ता जो है उस पर ये लोग घुस गए थे, इसलिए उसके तहत इनको फाइन किया जाएगा। कितना फाइन हो सके? 2 से 5 हज़ार के बीच इनका फाइन है। प्रत्येक गाड़ी का है? प्रत्येक गाड़ी का। आगे क्या निर्देश होगा सर? तो फाइन दे के इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि गाड़ी का सारा पेपर इनका सही है। डीएमओ साहब से भी हम लोग की बातचीत हुई, उन्होंने भी देखा सारे पेपर उनके दुरुस्त हैं। ধানবাদ জেলা ফটোগ্রাফার ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন ডিডিপিটিএ একটি প্রতিনিধি দল ধানবাদ জেলা প্রশাসক এবং সংগঠনের চেয়ারম্যান সুনীল কুমার সিং এবং সচিব মনীষ শাহের সাথে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করে এবং ফটোগ্রাফারদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হয়েছিল যে সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠান লকডাউনের কারণে স্থগিত করা হয়েছে এবং আমাদের স্টুডিও ফটোগ্রাফারদের সামনে যারা বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জন্য একটি বিশাল সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারা যদি স্টুডিও না খোলেন তবে ফটোগ্রাফাররা কিভাবে তাদের সংসার চালাবেন? এই সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করে জেলা প্রশাসক আধিকারিকদের বলেন যে রাজ্য সরকারকে তাদের সম্বন্ধে অবগত করানো হবে এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশনা পাওয়া মাত্র সংস্থাগুলিকে অবগত করা হবে। क्या बातचीत हुई? अभी हम लोग गए और डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है धनबाद जिला फोटोग्राफी एसोसिएशन की ओर से, और उसमें हमने उनसे आदेश निर्गत करने का पूछा है कि अभी तक हमें आदेश नहीं मिले हैं, हम अपने प्रतिष्ठान खोलें या नहीं खोलें। तो इसमें हमारे उपायुक्त महोदय का सीधा निर्देश है
कि जब तक राज्य सरकार से आदेश नहीं आता है तब तक आप लोग अपने दुकान को बंद रखिए। जैसे आदेश आएगा आप लोगों तक उसका सूचना दे दिया जाएगा। नाम पद? मैं सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष धनबाद जिला फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन और ऑल इंडिया फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी। পুরানা বাজার চেম্বার অফ কমার্সের ব্যবসায়ীরা আজ পুরানা বাজার জল ট্যাঙ্কির কাছে একত্রিত হয়ে হেমন্ত সরকারের দ্বারা বাজার উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সমস্ত দোকানদার একটি কালো ব্যাজ লাগিয়ে নিজেদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। का विषय है कि धनबाद में बहुत तेजी से कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जान भी जहान भी। देखिए ये WHO का रिपोर्ट है कि आपको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और अनलॉक 1 में राज्य सरकार ने सभी लगभग झारखंड की सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन ये 5-6 चीज जैसे कि कपड़ा हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, जूता चप्पल हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, टेलरिंग हो गया, फोटोग्राफी की दुकानें हो गई, इसको नहीं खोलना ये समझते पर है। जैसा कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई, माननीय विधायक महोदय धनबाद से भी गुहार लगाई, फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी गुहार लगाई। तो जो राज्य सरकार है ये टेक्निकल चीजों के बारे में कह रही है कि भाई आप कपड़ा बेचते हैं तो आपको ट्रायल में जाइएगा तो संक्रमण फैलेगा, या आप उसको वापिस कीजिएगा तो संक्रमण फैलेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम श्योर करना चाहते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी और अपने जान और अपने परिवार की फिक्र है। हम ट्रायल वगैरह नहीं करवाएंगे, हम वापसी कपड़ों की वापसी नहीं करवाएंगे, लेकिन हमारी जीविका को चलाने के लिए हमें दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। उसमें 4 चीज, इसमें कपड़ा है, रेडीमेड है, कॉस्मेटिक्स है और एक आइटम है। चारों बाकी चीजों को दुकान खोलने का आदेश दिया गया। इसमें हमारे कपड़ा व्यवसायी, जूता व्यवसायी और कॉस्मेटिक्स व्यवसाय में काफी आक्रोश है। उन्होंने भी सरकार के हर कदमों का साथ खड़ा करके उनके चाहे वो राशन बांटने का काम हो, चाहे गरीबों को भोजन कराने का काम हो, चाहे वो जीटो रोड में चप्पल पहनाने का काम हो, उन्होंने बढ़ चढ़ कर कंधा से कंधा मिलाकर जिला प्रशासन का काम किया। लेकिन इसके बाद भी जब लॉकडाउन 1 में इन 4-5 चीजों को छोड़कर बाकी चीजों को चालू कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग जिला प्रशासन और राज्य सरकार को अपने ये धारणा के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग को भी, हमारा ही परिवार है, हम लोग के भी जीने का अधिकार है उन लोगों के साथ। জামশেদপুরে এখনো সরকারের নির্দেশ অনুসরণ করে লকডাউনের পালন করা হচ্ছে। এদিকে বিগ বাজার, মেডিকেল দোকান এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান ছাড়া সমস্ত দোকানপাট এবং বাজার বন্ধ রয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে জামশেদপুরে এখনো লকডাউন পালন করা হচ্ছে। জামশেদপুরে প্রথমবার ব্যাংকের এটিএম আপনার দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করবে। আজ এইচডিএফসি ব্যাংকের প্রথম মোবাইল এটিএম এর আশিয়ানা গার্ডেন সোনারীতে উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে এই মোবাইল এটিএমটি কোভিড-19 সংক্রমণ থেকে প্রতিরোধ के नजरे रेखे तैयारी करा হয়েছে। एचडीएफसी बैंक और ये इनिशिएटिव लिया है बिकॉज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है, मोबाइल एटीएम। और मकसद ये है कि जितने भी हमारे यहाँ सिटीज़न हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि इस सिमुम में जितने भी फ्लैट्स हैं वो सारे फ्लैट्स में ये गाड़ी हमारी मूव करेगी, और जितने भी फ्लैट्स ऑनर है वो सारे लोग अपनी जो एटीएम से पैसा निकालने के लिए बैंक जाते हैं या एटीएम्स में जाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये सुविधा किया है कि वो खुद जो है एटीएम उनके द्वार पे आ रही है, बैंक उनके द्वार पे आ रही है, और बैंक चाहती है कि जितने भी एटीएम्स का विड्रॉल है वो हमारे इस मशीन से ले, इसकी सुविधा उठाए और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। দেশে করোনা সংকট অব্যাহত রয়েছে। 70 দিন পরে দেশে চলমান লকডাউন প্রায় শেষ। দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে করোনা সংক্রমণের ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। লকডাউন শুরুর দিন থেকে জামশেদপুর জেলা পরিষদ পিন্টু দত্ত তার এলাকায় অভিযান অব্যাহত রেখেছেন, যেখানে প্রথম দিন থেকে পর্ষদ প্রতিদিন কোনো না কোনো রূপে তাদের এলাকার দুস্থ অসহায় লোকেদের কাছে পৌঁছান। এবং এখনো পর্ষদ পিন্টু দত্তকে এমজিএম এলাকার বড়াবাকের পাশের এলাকায় গরিব ও দুস্থ লোকেদের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করতে দেখা যায়। জানানো হচ্ছে যে পিন্টু দত্ত লকডাউনের প্রথম দিনে ঘোষণা করেছিলেন যে তার এলাকায় কোনো গরিব অনাহারে থাকবে না। এই সংকল্প নিয়ে পিন্টু দত্তের প্রচার অব্যাহত রয়েছে। अभी हम लोग बड़ाबाकी पंचायत के जोड़ी गांव में हैं, और यहाँ करीब यहाँ तो ज़्यादा घर नहीं है, करीब 30-40 घर है। संपूर्ण घर को हम लोग सभी मेंबर्स को सभी खाना खिलाए। उद्देश्य यही है कि इस लॉकडाउन में
गांव में जिस तरह लोगों का काम काज नहीं हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि हर गांव में एक एक दिन करके खाना खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि कौन क्या परिस्थिति में है, इसी को देखते हुए मैं अपने स्तर से इस क्षेत्र के लोगों को, हर गांव के लोगों को खाना खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ाबाकी पंचायत के अंतर्गत ये गुरमा है और टोला जोड्डी है, और इसमें लॉकडाउन के कारण यहाँ के आम पब्लिक रोजी रोजगार कर नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण बहुत लोग यहाँ भूखा रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पिंटू दत्ता जी हमेशा ऐसे तो आते रहते हैं, लेकिन आपात स्थिति में भी हमारे आम पब्लिक को भोजन खिला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्षद पिंटू दत्ता जी को। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India, क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH State Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।